We keep cramming more and more into Pakistan's schools curriculum. But here's the shocking truth. More curriculum does not mean more learning. In fact, it's fueling our education emergency. Teachers are in a rush to complete the books, whereas the students cannot even read a basic sentence. So, what if the answer is actually less? What if cutting down the curriculum could transform learning in our classrooms? My guest today has been at the heart of this debate, and she's here to unpack what needs to change. Sabina Abbasi is an educationist, co-founder, and chief program officer of Taleemabad. Assalamu alaikum, Sabina. How are you? Walaikum assalam. I'm good. How are you? I'm good. Thank you so much for coming. Sabina, we'll start with your education journey. I want to know कि Sabina ने किस तरह के schools में पढ़ा है, किन schools में पढ़ा है, और वो schools दिखते कैसे थे, उनके अंदर का system कैसा था, और then we'll build upon it कि आगे जाके realities कैसे hit की थे. So मेरी schooling थी, मैंने my father was in Navy, so we kept on shifting from Islamabad to Karachi. So start मैंने I remember nursery Islamabad से ही किया था, and then we shifted to Karachi. तो फिर वहाँ पे भैया college था, वो community के अंदर ही था, तो walking distance था, रोज सुबह मैं मेरा भाई we used to go. It was a nice school, spacious था, काफी ज़्यादा classes थी, double story था. So space wise it was very nice. I think overall, if I talk about the journey or the memories that I have, I think I was always scared of going to school. And there were some instances which were, for example, जैसे schools में ना मुझे लगता है यूनिफॉर्म के ऊपर ना बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है कि आई रिमेम्बर एक बैज पहनना होता था, वो भी क्योंकि बच्चों को हाउसेस में डिवाइड करते हैं, और वो पता नहीं क्यों मैं हमेशा भूल जाती थी. एंड आई रिमेम्बर दैट उधर इट वाज सच अ बिग डील अबाउट फॉरगेटिंग दैट बैज, एंड उसकी वजह से बस वही उनकी जो पनिशमेंट्स होती हैं, बाहर खड़ा कर दो, बार बार डांटो, क्यों भुलाइयो. And then I remember I was so scared of going to school कि यार जब बैच अगर for example गलती से गुम जाए, तो मुझे scared of going to school. और एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं गुम गया था, और तो साथ ही मार्केट थी, और वो भी भरी होती है, सुबह बच्चे ही होते हैं वहाँ पे. And by the time I got my hands on the badge, school गई तो वो school start हो चुका था, and I was so scared of going inside कि मैं फिर I decided not to go, and I went to the nearby park, chilled all day. I mean, the idea is that वो इतना fear create किया जाता है ना, और अब I think of it, it was such an unnecessary thing. Maybe ठीक है, some people would say कि नहीं discipline आता है, but as a kid, I had a very unfavorable experience because of just tiny small thing. Yeah. But other than that, I think if I recall the learning bit of it, it was all rote learning. उसी पे एम्फेसिस था कि बस चैप्टर्स हैं, उनको भाग के याद करो, आंसर्स याद करो. कुछ टीचर्स ऑब्वियसली आई रिमेम्बर दिस वन टीचर, इन दिस वन पर्टिकुलर टीचर, हालांकि वो एज अ गेस्ट लेक्चरर ही आई थी, बट उन्होंने एक ही क्लास में इतना अच्छा पढ़ाया था ना, मतलब वो इंग्लिश पढ़ा रही थी, एंड देन शी वाज एनिमेटिंग एवरीथिंग, लाइक वर्ड्स सिखाई थी जिससे तो उसको एक्ट आउट करके बता रही थी, एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट क्लास. But in some classes, I think teachers just expected कि भाई बोर्ड में लिखा हुआ है, मैं समझा रही हूँ तो समझ आ जाना चाहिए. I used to be lost in my own world, उसमें भी डांट पड़ती थी, why aren't you listening to me? I think वो सारे जो experiences थे ना, it like obviously it has an effect on you. कि didn't really enjoy learning, to be very honest. Yeah. Not a very great, at least मैं अभी सिर्फ ऑनलाइन सिर्फ प्राइमरी के बारे में सोच रही हूँ. एंड आई थिंक कि आप इस तरह के एक्सपीरियंसेस से ना
आपको उस टाइम तो रियलाइज नहीं हो रहा था कि ये जो हो रहा है ये कुछ खराब है. यू फील लाइक कि सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, सब एक्सेल कर रहे हैं, मैं ही पीछे हूँ, मुझे शायद टीचर नहीं समझा पा रही, मेरी ही गलती है. यू स्टे इन दैट लूप ऑफ आई गेस कि आप अपने आप को ही ब्लेम कर रहे होते हो कि हाँ कहीं ना कहीं मुझे शायद समझ नहीं आता. सो व्हाट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट व्हेन यू रियलाइज्ड कि नहीं, एजुकेशन मैं जहाँ से पढ़ी हूँ वो फिर भी थोड़ा प्रिविलेज्ड है, इसके बाहर जो दुनिया है वो वैसी नहीं है एजुकेशन की. वो तो खैर बहुत बाद में जाके, क्योंकि आई थिंक उस वक्त आप अपनी दुनिया में होते हो, अपनी आपकी लाइफ चल रही होती है, एंड आउटसाइड वर्ल्ड इज लाइक अ बबल फॉर यू. आई थिंक जब मैंने टीच फॉर पाकिस्तान जब ज्वाइन किया था, एंड व्हेन आई फर्स्ट स्टार्ट व्हेन आई एंटर्ड इन अ गवर्नमेंट स्कूल, आई थिंक दैट वाज अ रियलिटी चेक फॉर मी कि वो बाकी दुनिया वैसी नहीं है. Do you remember any story from your Teach for Pakistan experience जब आपने नया गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना शुरू किया, जिसने that really hit you and उसने फिर आपको मजबूर कर दिया कि अब मुझे कुछ करना है for education reforms? I think since the beginning, it was a very accidental thing that I ended up in Teach for Pakistan. I was a business grad. कुछ मैंने थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर पे किया था, बट आई यूज्ड टू हेट इट कि होता था क्या मैं सिमे बेचूं, ये भी जिंदगी है. तो वेरी एक्सीडेंटली आई सॉ अ फ्रेंड, उसने पोस्ट लगाई हुई थी टीच फॉर पाकिस्तान की, एंड वेरी रैंडमली मैंने कहा चलो अप्लाई कर देती हूँ. Honestly, from day one, I absolutely loved it. From the day of training, जब literally वो training start हुई थी, 6 हफ्ते की थी, फिर स्कूल में गए, every single moment was like, wow, I'm at the right place. This is what I want to do. और फिर I think when you're teaching, especially in this setting, in a government school, with you're teaching kids who don't have sadly similar opportunities, उनको mostly write off ही कराया जाता है. मैं सेकेंडरी की गर्ल्स को पढ़ाती थी, और वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया हुआ था कि अगर आपने सेकेंडरी पूरा किया तो 2000 मिलेंगे, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऑनेस्टली 2000 के पीछे आते थे. सो वो टीचर्स का अगेन वही था, आई वुडंट ब्लेम देम, सिस्टम ही हमारा ये था, बस लोड लर्निंग कराओ, बोर्ड पे लिखो, आपको क्या इंटरेस्ट होगा इसमें. बट thankfully Teach for Pakistan में we learned all of these new strategies कि आपने engaging कैसे बनाना है, बच्चों को कैसे involve करना है. And I think what I started enjoying teaching. It was such a joyful classroom. We used to have lots of activities and games, and kids used to have fun, and then I think that was a realization that yeah, learning actually can be fun. Yeah. And I was just constantly thinking about how I felt as a kid and how I don't want them to feel like that, which is why I think it was a big driver. Yeah. So when you joined Taleemabad, it was a very interesting phase. आपने content के अंदर join किया. So what was it like? Education का content बनाना and उसको explore करना, वो कैसा experience था? So Taleemabad, yes, it was something different for me because जब मैंने enter किया था तो videos बना रहे होते थे, और videos में वही होता है, आप start करते हैं script writing से, फिर storyboard, फिर animation, फिर post production. And I absolutely loved it because again the content was for kids, और हम exactly वही philosophy use करें. It has to be engaging, it has to be fun, it has to be relatable. तो हम जब भी कोई आइडिया लेके आते थे ना, जैसे फ्रैक्शंस हैं, वो ऑलवेज सेइंग दैट ओके स्टोरी लोकलाइज्ड होनी चाहिए, फन होनी चाहिए, जिससे बच्चे हैं, किड्स आर सपोज्ड टू हैव फन, दे आर सपोज्ड टू प्ले. व्हाई आर यू मेकिंग education such a horrible experience for them? Which is why I think that was the best phase honestly of the मेरा टाइम एटलीस्ट तालीमाबाद का सबसे बेस्ट वही था, because it was just so much fun making content for them. Every story that we made, उसको जिस तरह एनिमेट करना है, छोटी छोटी चीज़ें, सीन कैसे टर्न होगा, स्टार्ट में क्या आएगा, एंड में क्या आएगा, एंड में बच्चा बोर तो नहीं हो जाएगा. फिर हम डेटा बहुत देखते थे कि ड्रॉप ऑफ कहाँ कर रहे हैं बच्चे. देन वी यूज्ड टू गो टू स्कूल्स एंड टेस्ट आउट दीज वीडियोस, एंड वी यूज्ड टू सी कि अच्छा बच्चे एंगेज कर रहे हैं, हंस रहे हैं, नहीं हंस रहे. उसके बाद वी यूज्ड टू आस्क देम. कभी होता था कि स्टोरी बहुत याद थी, कॉन्सेप्ट नहीं याद था,
to change our strategy. So I absolutely loved that part of my life. I remember because मेरा आप लोग की पहली जो स्टूडेंट ऐप है उससे काफ़ी इंटरेक्शन रहा है मेरे बच्चों की तरफ से. So I remember कि it was so engaging कि एक टाइम था, my daughter was I guess 3 years that time जब आप लोग वो कंटेंट शूट करके ऐप पे डाल रहे थे, एंड उसका एक्सेंट भी ना ऐसे हो गया था, अरे अरे नहीं. आई नो दैट कि उसको मैं कभी कॉपी पे ट्रेस करा रही होती थी तो उससे खुद गलती हो जाती थी, कहती नहीं नहीं ऐसे नहीं, अरे नहीं. सो आई रिमेंबर इट बीइंग फन. इट वाज फन एंड इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट. आई रिमेंबर कि कोविड में व्हेन आई वांटेड कि घर से अब क्या करूँ, एक होता है स्ट्रेस, बच्चे बहुत फ्री हो गए हैं, टाइम इतना ज़्यादा है, तो उस टाइम पे फिर मेरा दिल करता था क्या बताऊँ. आई केम अक्रॉस तालिमाबाद दैट टाइम एंड उसको डाउनलोड किया एंड देन मुझे भी तब रियलाइज हुआ कि यार इट कुड बी फन. जरूरी नहीं है कि मैं उसको बिठाऊं और मैं उसको कहूँ अब ट्रेस ऐसे करो, ये ए है ये बी है. उसने बहुत ऑर्गेनिकली लर्न किया है. वो जो उसका रिलेशनशिप है विद लर्निंग नाउ, अब वो फन पे ही डिपेंडेंट है. अब वो जब उसको मजा नहीं आता वो नहीं पढ़ती. I'm so happy to hear this, by the way. You made real impact. That's I remember कि मैं देखती थी and when I joined तालिमाबाद तो मैं ये कहती थी कि हाँ अच्छा इसके पीछे इतना thought process है, but मैं user end से आई हूँ तो I know कि वो कितना impactful है. Really happy to hear that. उसके बाद सबीना we learn daily newspapers, headlines. इसको थोड़ा और बात होनी चाहिए इसके बारे में, इतना ज़्यादा भी नहीं हम इसके बारे में सुनते, लेकिन लर्निंग पॉवर्टी. पहले आप मुझे बताओ कि हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग पॉवर्टी को किस तरह डिफाइन करें आजकल. I mean, it is a very loaded word and I mean पाकिस्तान में अब मैं जब ऑनेस्टली ज्वाइन किया था टीच फॉर पाकिस्तान, तब वो सबसे पहले वो आपको स्टार्ट्स पढ़ाते हैं, ठीक है. उस वक्त ये स्टार्ट था दैट 22 मिलियन बच्चे आपके स्कूल के अंदर ही नहीं है, ठीक है. जो जा रहे हैं वो भी ग्रेड 5 तक बेसिक 2 डिजिट डिवीजन नहीं कर सकते, एक स्टोरी नहीं पढ़ सकते हैं, और उसके बाद मेजॉरिटी ड्रॉप ऑफ कर जाते हैं. एंड इट्स वेरी सैड दैट अब मुझे उस एक्सपीरियंस को आई थिंक 2013 में था, इट्स 2025. आउट ऑफ स्कूल बच्चे 26 मिलियन पे चले गए हैं और वो जो असर के टेस्ट हैं वो मोर और लेस वही है. एंड इट्स जस्ट एंड दैट लिटरली टेल्स यू लर्निंग पॉवर्टी इन पाकिस्तान. एंड इट्स आई मीन थोड़ा सा मुझे कभी कभार अजीब भी लगता है. इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान इज अ कंट्री where there are a lot of talented people like you and there's so many other brilliant individuals who are doing some great work. And I'm just surprised that we haven't been able to solve this problem. It's just heartbreaking. There's a triangle we always talk about: teacher quality, resources, and curriculum. I'm coming towards the curriculum part of our topic. So, मुझे पहले बताएं how does that triangle works? Curriculum, teacher performance and then and the lack of resources in Pakistan. I mean मतलब जब आप थोड़ा सा डिग डीप करते हैं तो प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारी निकल जाएंगी ना. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं ट्रेंड हैं, ओवर क्राउडेड क्लासरूम है, बहुत सारी मतलब जैसे आप वो जितने कुएं में हाथ डाल रहे हैं. हमने थोड़ा बहुत फोकस शुरू में इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया था, बट देन ऑब्वियसली आप जब सारी चीज़ें देखते हैं तो इफ़ आई टॉक अबाउट करिकुलम, we recently did some research on that कि पाकिस्तानी करिकुलम फिर हमने जब कंपेयर किया with some international मतलब इवन अगर आप डेवलप्ड कंट्री को करें और डेवलपिंग को भी करें, काफ़ी कंट्री से जब आप कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तानी करिकुलम अपेरेंटली बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस है. आई मीन हमने GPF के साथ जब कंपेयर किया था तो जहाँ 8 स्किल्स वहाँ पढ़ाई जाती है, हमारे 33 स्किल्स आ रहे थे. तो लाइक फिर आप सोचते हो कि यार पहले ही बच्चे नहीं पढ़ रहे, करिकुलम किसके लिए बनाया है. एंड आई मीन ऑब्वियसली वो भी काफ़ी अच्छी एफर्ट थी जिन लोगों ने बनाया है, वो भी सोच समझ के बनाया है. बट द ग्राउंड रियलिटी इज कि अगर आपके मेजॉरिटी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो थोड़ा सा एम्बिशन नीचे लेके आए कि वो थोड़ा जो जितना कर सकते हैं फाउंडेशनल स्किल्स तो बेहतर करें ना, आगे जाके आप उसको बेशक बेहतर कर दें, बट एक चीज़ तो फिक्स करें ना. फिगर वन थिंग आउट and be realistic. We can't have a curriculum जो एक developed country में है, जहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज नहीं है, जहाँ पे वन टीचर क्लास सिंगल टीचर स्कूल्स नहीं होते, मल्टी ग्रेड क्लासरूम इंसिडेंट्स नहीं होते हैं, इस तरह के इश्यूज नहीं होते हैं. वो वाला करिकुलम आप नहीं यहाँ पढ़ा सकते. सो थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी को भी मद्देनजर रखना चाहिए. आप
मतलब ऑनेस्टली आप इस्लामाबाद से निकल जाएं, हम अभी रावलपिंडी के स्कूल्स देख रहे थे, 50% से ज्यादा मल्टी ग्रेड है. दिस इज रावलपिंडी नेक्स्ट टू इस्लामाबाद. फिर हम जब बलोचिस्तान में गए थे, कोयटा से निकलो तो इंटरनेट ही नहीं है, क्लासरूम्स इतनी स्पेस्ड आउट हैं, उसी के आउटस्कर्ट्स में आपको मल्टी ग्रेड के इंस्टीट्यूट नजर आते हैं ओवरक्राउडेड क्लासरूम में. तो बस लाइक एंड सैडली द करिकुलम is not in sync with these realities, which is why I think ठीक है resources का तो अपना issue है ही है, training का अपना issue है ही है, but this is again मतलब कि मैं टीचर को जितना मर्जी ट्रेन करा लूँ, वो मुझे ये कहती है यार मैंने 100 बच्चों को पढ़ाना है, मैं आपकी एक्टिविटीज कैसे कराऊंगी 100 बच्चों में? I just need to make sure that they pass, that's it. और उसको उस टाइम लिमिट के अंदर अपना पूरा एकेडमिक ईयर का एक साथ पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो वो it becomes a race for teachers as well कि बस खत्म करवाना है ये. While we are talking on this, अब जब आप नीयत के थ्रू बहुत ज़्यादा एडवोकेसी कर रही हैं ऑन रिडक्शन ऑफ करिकुलम, सो वो कौन सी पॉलिसी हडल्स है जो आपको फेस करनी पड़ रही हैं? So it's very interesting, जब हमने इस पे काम करना शुरू किया था तो I have not come across any single person so far who has said no to this. Every single person agrees with it. जिससे भी पूछा है, चाहे वो पॉलिसी मेकर हो, चाहे वो कोई NGO से ताल्लुक रखता हो या गवर्नमेंट का हो, everyone agrees with it. And हम फिर ये सोच रहे थे कि अगर सब एग्री करते हैं तो कम क्यों नहीं हो रहा. एग्जैक्टली. और फिर ऑब्वियसली थोड़ी सी एक है I mean एंग्जाइटी है कि अभी चेंज किया था उस वक्त क्यों नहीं. एक बहुत इंटरेस्टिंग मीटिंग हो रही थी प्लानिंग कमीशन में, जहाँ पे it was I absolutely love that meeting because it really showed me कि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट सारे बने हुए हैं, really good people in those institutes. मतलब उस मीटिंग में आपका फेडरल बोर्ड के लोग आए हुए थे, FT के रिप्रेजेंटेटिव, FC के थे, फिर आपकी ये जो NCC के, मतलब ये सारे इंस्टीट्यूट है, करिकुलम से लेके एग्जामिनेशन बोर्ड, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, प्री सर्विस अलग, पोस्ट सर्विस अलग, मतलब हर कोई था वहाँ पे. एंड वही डिबेट ही चल रही थी कि टीचर्स को ट्रेन करना है. वो तो एक अच्छा था कि यार मतलब कि इतना अनरियलिस्टिक कोर्स है तो आप टीचर्स को कितना मर्जी ट्रेन करें. एंड देन द NCC गाय वाज लाइक यार अभी तो करवाया था और आप सब थे उसमें ऑन बोर्ड थे. एग्जैक्टली. सो यू आर लाइक पजल्ड कि खैर दे कैन बी मेनी रीजंस टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि यार जिन लोगों ने बनाया था वो बहुत एलीट स्कूल से हैं, बेहतर स्कूल से थे, मे बी वो नहीं रियलाइज करते कि मेजॉरिटी कैसे हैं. माइट बी वन रीजन, बट गवर्नमेंट स्कूल के भी थे लोग. एंड देन देयर इज प्रोबेबली अ फियर दैट अगर हम कम कर देंगे तो शायद हम पीछे रह जाएंगे. तो इस तरह की भी फियर्स हैं. फिर करिकुलम जो है ना एक बहुत पॉलिटिकल चीज भी होती है. दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट बिकॉज ऑब्वियसली आपकी नेशनल आइडेंटिटी से जुड़ी हुई होती है कि आपने बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्योंकि आपकी जो सोसाइटी होती है ना वो रिफ्लेक्शन होती है आपके एजुकेशन सिस्टम की. तो एक ये भी फैक्टर होता है. सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बट ऐसा नहीं है कि कोई रियलाइज नहीं करता कि यार ये है प्रॉब्लम. मतलब हमने ऑनेस्टली जब इस्लामाबाद में एज अ पायलट कम कराया था लास्ट ईयर, तो we got a go ahead from all the government officials. मतलब वो थोड़ा सा they do want to try it, they do want to experiment. Absolutely. They totally agree with that. मतलब some people say it is flexible, वो सीलिंग सेट की भी है, आप उसके नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इंडस्ट्री इफेक्ट होता है ना कि आपका करिकुलम इतना एम्बिशियस है, फिर आपका बुक्स भी फिर बननी चाहिए, फिर बुक्स भी फिर NCC से अप्रूव करानी होती है. तो अगर आपने सारे नहीं डाले होते तो वो नहीं अप्रूव करते सारे SLOs जो उन्होंने मेंशन किए हैं. सो वो फिर लाइक इट हैज अ रिपल इफेक्ट ऑन इंटायर इंडस्ट्री. सो इट्स मतलब इवन अगर कल चेंज हो जाता है करिकुलम, इट्स नॉट लाइक वो बस एज इट इज वो होगा. फिर ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक चेंज होंगी, टीचर की जो भी आपने लेट्स से लेसन प्लान्स वगैरह बनाए हुए हैं वो सब चेंज होगा. अब करिकुलम के साथ एक चीज़ बहुत पैरेलल में जो चल रही है दैट इज आवर असेसमेंट मैकेनिज्म, जिस तरह हम लोग क्या काम करें करिकुलम के अंदर ही वो आता है. सो डू टेल मी कि करिकुलम तो हो जाएगा छोटा, देख लेंगे, हमारे पास स्टैट्स भी हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट असेसमेंट? उस पे क्या रिसर्च है? पाकिस्तानी असेसमेंट्स जो है गवर्नमेंट स्कूल्स को, हम पब्लिक स्कूल्स को डिस्कस करेंगे, तो वो किस तरीके से चल रहा है और वहाँ पे आपने क्या क्या शिफ्ट देखा है? I mean assessment जो है इस पे बहुत ज़्यादा टू बी वेरी ऑनेस्ट कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ होते हैं. कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल ख़त्म कर दें, कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा कर दें, और ऑनेस्टली रिसर्च आपको दोनों साइड में मिल जाती है.
अर्ली ईयर्स में कहते हैं बिल्कुल असेसमेंट करानी ही नहीं चाहिए आपको, बट खैर इट्स अगेन दिस इज लाइक समथिंग, असेसमेंट से जाहिर है आपको फिर थोड़ा सा पता चलता है कि किस लेवल पे है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम असेसमेंट से है कि हम लोग उसको यूज ऐसे करते हैं कि इट काइंड ऑफ डिफाइंस अ चाइल्ड्स लाइफ, राइट? एंड आई फंडामेंटली डिसएग्री विद दैट कॉन्सेप्ट. आई एग्री, ठीक है, वो उसको इम्प्रूव करने के लिए पता चल रहा है, बट ये जो रैंकिंग सिस्टम होता है ना, ये अब मेरी पर्सनल ओपिनियन है दैट आई डोंट लाइक रैंकिंग सिस्टम, क्योंकि हम उस लेवल के साथ पूरी जिंदगी गुजार चुके हैं. वी नो हाउ डज इट फील. वो पीटीएम्स वर नेवर समथिंग जिसके बारे में हम कभी बहुत एक्साइटेड रहे हो. इट ऑलवेज कम्स विद अ फियर कि पता नहीं क्या हो जाएगा. एंड मैंने एक शिफ्ट देखा है. सो माय एल्डेस्ट वन, शी इज 10 नाउ इन ग्रेड 5th. आई रिमेंबर कि जब वो अपने प्राइमरी स्कूल में थी तो असेसमेंट्स होते थे उसके स्कूल में. उस टाइम स्कूल असेसमेंट ले रहे थे, एंड वो जब असेसमेंट के थ्रू गुजरती थी बार बार, तो कहीं ना कहीं मुझे भी पता चलता था कि कहाँ पे उसको हेल्प की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद वो भी बिल्ड करने की कोशिश करती थी. लेकिन अब मेरी जो दूसरी वाली है, when now she is in primary, assessments ही नहीं होते. Right. There's not even a single assessment. I don't know what's happening in the school. The teacher does not know what's happening with the child. The child does not know, और उसको फिक्र भी नहीं है आपको क्या हो रहा है. वो she is fine. उससे जब पूछूं कुछ है नहीं तो उसका यही होता है, मेरे तो पेपर्स है ही नहीं. So, अब मुझे ये अब now when I was looking at एजुकेटर के पर्सपेक्टिव से, तो मैं कहती थी कि अब यहाँ पर आई नीड टू फिगर इट आउट कि क्या बेहतर था, क्योंकि मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रही हूँ उस चीज़ को. क्या मुझे खुद उसके लिए कुछ असेसमेंट्स बना लेने चाहिए? नहीं, बट आपको दोनों बच्चों में डिफरेंस नजर आ रहा है? या आई कैन सी इट. बड़ी वाली जो है ना, शी टेक्स ओनरशिप ऑफ हर लर्निंग, राइट, क्योंकि वो एक सिस्टम से गुजरी है ऑफ मेमोराइजिंग ही बोल दें बेशक, बट लेकिन कहीं ना कहीं इट यूज टू हेल्प एक्सरसाइज हर ब्रेन, राइट. अब दूसरी वाली जो है ना, वो केयर फ्री मॉडल में है, राइट. मुझे उनके जो लर्निंग आउटकम्स है ना, उनमें फर्क नहीं नजर आता. दोनों की सेम है, दोनों के लर्निंग आउटकम सेम है. एक एंजाइटी का शिकार है. It's very interesting, and because you're experiencing it real time, that's very interesting. Basically, my perspective on this is that मुझे लगता है that जब आप ranking system लेके आते हैं, and I'm not saying it's completely wrong, but I think that then all your effort is about securing that position and not learning. For me, if I want to change one thing is that learning should be important. कि मैं पढ़ाई सीख क्या रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों सीख रही हूँ, मैंने कहाँ अप्लाई करना है, एप्लीकेशन क्या है. सो वो पार्ट जो है ना, आई वॉन्ट कि मेरा, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने मास्टर्स किया था यूके से, वहाँ पे मुझे एक स्टार्क डिफरेंस ये नजर आया था कि आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन, मेरा एक थीसिस था, एंड में जो आपको थीसिस देना होता है, अब एक चॉइस होती है, आप इजी क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं, रिसर्च क्वेश्चन लेके आ सकते हैं उसमें. वो वहाँ पे होता है, काफ़ी बच्चे करते थे कि यार इजी कर लो, बट मुझे एक दिमाग में एक क्वेश्चन था और वो बहुत टफ क्वेश्चन था, सबने मुझे मना किया था, बट मैंने कहा नहीं यार, मैंने एक्चुअली आई डोंट केयर अबाउट मार्क्स, आई एक्चुअली वांट टू लर्न अबाउट दिस. सो ये चीज़ मुझे लगता है कि इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. एंड रैंकिंग सिस्टम आई थिंक जब थोड़ा केयरफुली नहीं इम्प्लीमेंट होता ना, वो सैडली इस चीज़ को प्रमोट करता है, और फिर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि फिर सिस्टम बहुत नेचुरली ना रोट लर्निंग पे शिफ्ट हो जाता है कि बस पास कर दो, और पेरेंट्स का भी ये होता है पास करो, फुल मार्क्स लेके आओ, बेशक रट्टा लगा के करो, लेकिन पढ़ रहा है, सीख रहा है, समझ आ रहा है, उसको कुछ अप्लाई कर रहा है, उस पर कोई एम्फेसिस ही नहीं है. एंड आई थिंक दैट्स माय फंडामेंटल इशू विद द वे असेसमेंट्स आर. गिल्टी ऑफ इट कि जब रैंकिंग सिस्टम है अब, क्योंकि दोबारा उसका स्टार्ट हो गया रैंकिंग सिस्टम 5th ग्रेड से. So you do get, as a parent I can relate to it कि पेरेंट्स हो जाते हैं worried कि यार क्लास में पीछे चले, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जब मुझे सब कुछ पता है, I know the theory behind it, I know, even then I get worried कि यार ranking system है, because it is not about me, it is about the people around and the system around my kid, जो फ्यूचर में उसको evaluate ही इन numbers पे करेगा. So मेरे change होने से शायद वो इतना difference ना आए. We need to like see it from, वो कहते हैं ना, ऊपर से एक व्यू देखना है, बर्ड आई व्यू देखना है कि हाँ
पूरा सिस्टम चेंज होगा तो थोड़ा सा जाके यहाँ पर ये चीज रिलैक्स हो सके. I think assessments in itself, I don't think that they're bad, but it's just the way they're designed currently. I think it promotes rote learning. तो उसको अगर हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें कि फीडबैक पे ज़्यादा फोकस करें ताकि बच्चा सीख भी रहा हो, उसको राइट फीडबैक मिल रहा हो. ये नहीं कि उसको आप कुछ भी नहीं बताएं कि वो सीख रहा है या नहीं, कोई भी टॉपिक कर रहे हैं. Give that kid the feedback. Peer learning होती है. Peers एक दूसरे को feedback देते हैं. So there are other ways as well where you can, judge a child whether he's learning or not instead of just resorting to a paper-based exam. So I think उसको थोड़ा सा अगर हम reform कर दें, I know it's challenging, उसमें और जी मसले हैं, but थोड़ा step by step करके ना, I think it's important that we move that way. Last year, Taleemabad stepped into being a frontliner in education through Niyat. So lots of people, मुझे लगता है नियत का पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का भी नहीं भी पता. So उनके लिए tell us what is Niyat. So Niyat basically it's called National Institute of Excellence in Teacher Education. और ये establish हमने तकरीबन 2 साल पहले the idea came and तालीमाबाद को माशाल्लाह 10 साल हो गए. And उसमें like you said हम content बनाते थे, फिर हमने low cost private schools के साथ किया, and then government शुरू में काफ़ी ज़्यादा interested थी. They wanted our model. हम उस वक्त नहीं बना रहे थे public schools का सोच के, but then 2 years ago we thought okay, let's get into this market. And honestly the idea was that आप पब्लिक स्कूल्स को अगर ठीक कर देते हैं ना, उनकी कैपेसिटी बेहतर करते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग बेहतर करते हैं, तो आई फील लाइक कि अगर वो उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है ना, तो इट हैज़ अ रिपल इफेक्ट ऑन रेस्ट ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम एज वेल. एंड दिस एक्चुअली हैपेंड इन इस्लामाबाद की क्वालिटी इतनी इंप्रूव हुई थी कि एडमिशन्स बढ़े थे, और फिर जो बाकी लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल से दे ऑल्सो हैड टू अप देयर गेम. तो नियत का आइडिया यही था दैट हम एक नेशनल लेवल पे एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करें जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को यूज करें. हाउ कैन वी एक्चुअली लेवरेज टेक्नोलॉजी? द आइडिया इज नॉट टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम. ऑब्वियसली आइडिया आपका अपना होता है, आपने उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है. टेक्नोलॉजी इज अ मीडियम, बट द गुड थिंग अबाउट टेक्नोलॉजी इज दैट यू कैन स्केल इट. तो एक टीचर से, जैसे ट्रेडिशनल मॉडल्स होते थे ना, ट्रेन द ट्रेनर वाले, कि ट्रेनर आएगा 10 दिन ट्रेनिंग कराएगा फिर चला जाएगा. फॉलो अप्स यूजली मैंने कम ही देखे हैं कि वो अप्लाई कर भी नहीं है नहीं. और फिर टीचर्स के अक्सर जब उनसे पूछते भी थे, अक्सर टीचर कहते थे कि हम बस TNDA के लिए जा रहे हैं. कुछ टीचर्स वहाँ पे अपनी वो सिलाई वो कर जाती. हाँ एग्जैक्टली. एंड बिकॉज I think sadly training sometimes, I'm not saying all of it, but some of it is very divorced from reality. हम भी जब जाते थे, हमें भी सुनाते थे टीचर्स की, यार मेरी क्लासरूम का साइज देखो और अपने आइडियाज देखो, पहले आप करके दिखाए ना मुझे मेरी क्लास में, तो हम कर लेंगे. सो वो गवर्नमेंट टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा हमें अच्छा फीडबैक दिया. और ऑनेस्टली ये सारी कंबाइंड एफर्ट थी. wasn't just Taleemabad. FD played a major role in it. Ministry of Education was highly supportive. The good thing I think I realized after ये नियत जब हमने लॉन्च किया था कि इंटेंशन बहुत अच्छी है गवर्नमेंट की, and they're very open about using technology to actually transform the education, and that's what actually Niyat is about. Yeah. So where does the coaching come in all of this? ये आइडिया कैसे आया कि फॉलो अप के लिए हम फील्ड पे किसी को भेजेंगे जो रियल टाइम में देख सके कि टीचर को मदद की कहाँ जरूरत है? जब आप एविडेंस देखते हैं ना, एडटेक का कहीं भी एविडेंस देख लें, तो सबसे ज्यादा आपको वही नजर आता है जब ऑन ग्राउंड प्रेजेंस होती है. जब आपका ठीक है एक LMS है, बट आपने जब उसको कॉम्प्लीमेंट किया ना विद दीज कोचेस हु आर एक्चुअली गोइंग टू क्लासरूम्स एंड ऑब्जर्विंग द टीचर. सो वर्ल्ड बैंक का ये टीच टूल काफी फेमस एक टूल है, जो स्टैंडर्डाइज टूल है, जिसके थ्रू आप जब टीचर को, अगेन वही बात है, जिस तरह आप बच्चे को फीडबैक देते हैं, उसी तरह आप अगर टीचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको फीडबैक दे रहे हैं, सो दैट शी कैन इम्प्रूव, राइट. मैं टीचर पाकिस्तान फेलो थी, हर 6 हफ्ते बाद मेरी भी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर आती थी, शी वुड ऑब्जर्व एंड शी वुड गिव मी फीडबैक, एंड दैट्स अ चांस फॉर मी टू इम्प्रूव, राइट. जब हम कोई भी जॉब करते हैं तो हमारा सुपरवाइजर आके हमें फीडबैक देता है क्वार्टरली बेसिस पे कि अच्छा आपने कैसे इम्प्रूव करना है. दैट्स लाइक एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट का पार्ट होता है. सो आपने ठीक है डिजिटल एस्पेक्ट उसको दे दिया, बट उसको जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना ऑन ग्राउंड कोचिंग से, ये एक और मुझे उसका बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया था. दैट
जब सिर्फ आप LMS लेते थे ना, तो आप अपने बैक ऑफिस में assumptions बना रहे होते हैं बहुत ज़्यादा. बट आई रिमेम्बर जब शुरू में भी कोचेस गए थे, दे यूज्ड टू कम बैक टू अस से कि यार ये तो है ही नहीं ग्राउंड में, आपको पता है ये मसला है, उधर ये मसला है, उधर ये मसला है, उधर क्लासेस ये हैं, उधर तो है ही नहीं. एंड देन आई रिमेम्बर फिर एक एक्सरसाइज की थी हमने, एक स्कूल प्रोफाइल पूरा बनाया था, जहाँ पे हमने एक एक स्कूल का जाके क्लासरूम्स कितनी हैं, टीचर्स कितने हैं, वॉशरूम्स कितने हैं, और ये सारा डेटा उठा के हमने दिया था गवर्नमेंट को. एंड गवर्नमेंट रिएक्टेड वेरी पॉजिटिवली. They shifted all their funds. So I'm just telling you the benefits of coaching. Yeah. It's not just one dimensional. There's so many other ways through which you can improve the entire teaching experience. So Sabina, I think ये question थोड़ा सा preemptive है, but we see a lot of interventions education के अंदर. They come, they go. But what is that one thing that changes project-based interventions or change into a long-term transformation? I think I absolutely love this question because मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ पे होती है कि जब हम सिर्फ इसको प्रोजेक्ट लेते हैं. और मैं जितने भी मैंने पाकिस्तान में प्रोजेक्ट बेस्ड थिंकिंग ज़्यादातर मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं लोगों से पूछती हूँ कि अच्छा इतना अच्छा प्रोग्राम था, हमने इतने लोगों को ट्रेन किया, हमने ये रिसोर्सेज ये वो रिसोर्सेज किए, अच्छा अब क्या हो रहा है, नहीं वो तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, फंडिंग खत्म हो गई, चले गए. एंड बाय द वे टीच फॉर पाकिस्तान में भी वन ऑफ द थिंग्स दैट बॉदर्ड मी वाज कि यार मैं चली जाऊंगी तो फिर बच्चे क्या करेंगे. एंड तो इन नियत आई थिंक हमने बहुत डिलिबरेटली ये बार बार मैंने लिटरली हर किसी को एम्फसाइज करती हूँ कि इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट, इट इज अ प्रोग्राम एंड देयर्स अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू अबाउट इट. दैट आप जो है ना, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की पूरी लेयर है ना या मशीनरी है, उसको यूज करें. ठीक है, क्योंकि आपने अगर चले जाना है तो आपने सिस्टम को एम्पावर करना है, एक इंस्टीट्यूट बिल्ड करना है और इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है कि आप चले भी जाएंगे ना फर्क ही नहीं पड़ेगा. सो अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू. ठीक है, आप ट्रेन कर दो उसको, बट अकाउंटेबिलिटी बिल्ड करें. होता है ना कि आप अकाउंटेबिलिटी इस तरह की बिल्ड की है कि वो सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम बन गया है कि मुझे जाके अब इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है. एंड आई रियली होप अगर सारे इनिशिएटिव इस तरह हो ना, दैट यार है एग्जिस्टिंग मशीनरी, उसको एम्पावर करो. आई फील लाइक वी कैन ये बहुत जल्दी भी मसला हल हो सकता है. आइडिया शुड कम फ्रॉम the fact कि आप पहले सोच लो कि मेरा end goal है कि मैंने irrelevant होना है. If you want to stay relevant all the time with your project, तो फिर नहीं वो चेंज आ सकता है. बट अगर आपका गोल ये है कि इन दी एंड मैंने irrelevant होना है, तो फिर आई गेस आपका वो माइंडसेट जो है ना रिफ्लेक्ट करेगा आपके काम के अंदर. एब्सोल्युटली. यहाँ पे थोड़ी सी फिलॉसफी इस तरह आ जाती है बिकॉज नेचुरली ह्यूमन बिहेवियर होता है ना कि यू वांट टू क्रिएट योर डिपेंडेंसी. दिस इज अ वेरी नेचुरल नीड. आपको पता भी नहीं चलता कि ये हो जाता है. हाँ, कि मेरे ऊपर डिपेंडेंसी हो, मैं क्यों इरेलीवेंट हूँ. आप किसी बोलेंगे भी ना आप इरेलीवेंट होंगे तो वो माइंड करेंगे क्या मतलब है. जैसे हमने नियत में एक बहुत रेडिकल लिया था आइडिया कि यार हम जाएंगे थोड़ा सा कोचलेस की तरफ, या थोड़ा ट्रांजिशन करेंगे, स्कूल लीडर्स को एम्पावर करेंगे, AI कोच लेके आएंगे. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट a lot of people took it positively, because honestly that was the intention, that जो government के existing stakeholders हैं, we really need to empower them and build accountability over there. So Sabina, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है. Not trying to make it controversial, but जब आप एजुकेशन के सिस्टम में आते हैं, so there are certain questions जो एक लेमैन के दिमाग में आते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है. So I want कि इस प्लेटफॉर्म से वो कहीं ना कहीं वो जो हार्ड कॉन्वर्सेशंस हैं उनको हम थोड़ा बहुत कोशिश करें कि टैकल कर सकें. So I'm gonna ask you some questions and you will answer them simply. So do you think edtech companies are filling the gap in education, or they're just capitalizing on the broken system? Very interesting question. अगर तो प्रॉब्लम छोटी होती ना तो मैं कहती यार सेकंड वाला, बट प्रॉब्लम इतनी बड़ी है मुझे होता है कि जितने ज़्यादा लोग हैं कम हैं. सो edtech I would say that right now much needed in Pakistan. ठीक है. Many edtech projects don't sustain beyond funding cycles. How do we break the cycle of pilot, publish and disappear? इसमें ऑनेस्टली मसला पता है क्या है, सस्टेनेबल फंडिंग का ऑब्वियसली है मसला. अगर हमने एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट आपको बना के दिया है तो पीछे मैंने सस्टेन अपनी टीम भी तो सस्टेन करनी है ना, वो मुफ्त में तो नहीं बना. सो ये आई थिंक दैट ये गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू ये सॉल्व होना चाहिए कि विच इज़
a good thing is that government is now putting in money into this. So ये जैसे अब edtech companies usually बाहर से funding raise करती हैं, VC funding हो गई, impact funding हो गई, लेकिन that is again not sustainable. Sustainable तभी होगी जब government जो है actively invest करेगी in the edtech sector. So with programs like जिनमें हम field पे जाते हैं and we bring out the data, there is always controversy regarding कि ये तो important data collect करने की machinery है, लोग जाते हैं personal data लेते हैं and then they sell the data. What do you think about it? I mean, obviously, I completely understand it's a valid concern, but data important भी होता है. आपके डेटा से आप, जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी जो कोचेस आके रिपोर्ट कर रहे थे, फिर हमने उसको ऑफिशियली एक डेटाबेस बनाया स्कूल प्रोफाइल का, फिर उसको हमने कुछ सॉफ्टवेयर्स के थ्रू क्लीन किया, एक मैप व्यू दिया, मैप व्यू में हमने वो स्कूल्स आइसोलेट किए जहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा थी, और जब हम उस तरह करके डेटा प्रेजेंट किया था गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड, व्हाई डू यू गिव डेटा, सो दैट देयर इज अ डिसीजन टेकन टू करेक्ट दैट सिचुएशन, राइट? सो इट इज इम्पॉर्टेंट एज वेल. आई कम्प्लीटली अग्री कि कुछ एथिकल कंसर्न्स होते हैं, आपको वो हमने इसलिए थोड़ा बहुत किया हुआ है इन प्लेस कि कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होंगे जिसके बगैर नहीं होता है कि आप यूनिक आइडेंटिफायर्स लगा देते हो, एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं देते हो. इस तरह के आपको गवर्नमेंट की तरफ से ना थोड़े से मैंडेटरी होने चाहिए. आई एग्री विद दैट कि ये एक प्राइवेसी कंसर्न है. पेरेंट चाइल्ड टीचर ट्रायंगल, व्हाई इज देयर नो फोकस ऑन पेरेंट्स? ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स पे, जैसे हमने काफ़ी ज़्यादा पहले थोड़ा इनिशिएटिव लिया था, PTM करने की कोशिश की थी, पेरेंट ऐप बनाने की कोशिश की थी. टेक्नोलॉजी में सैडली एटलीस्ट हम जिस मार्केट में हैं वहाँ पेनिट्रेशन एक तो बहुत कम है. इवन अगर है, पेरेंट्स जो हैं वो पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, रात को आते हैं, एंड देन दे डोंट हैव टाइम. वी ऑनेस्टली हर दूसरे साल हम इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, बट दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन दैट if both of the parents are working, और जो मजबूरी होती है जो काम करते हैं पूरा I know कि जब ज़्यादा होमवर्क आ जाते हैं बच्चों का, तो आई थिंक हम मैंने कराने तो स्कूल क्या कर रहे हैं. हाँ, कोविड में इतना आया था, क्राइसिस आया था, हर्ट सो मेनी पेरेंट्स. एक तो वो बेचारे तंग आ रहे थे कि स्कूल बंद हो गए हैं, अब हम इनको कैसे संभालें. बट ये भी होता था कि हमें सारा करना है तो मैं स्कूल को क्यों. दिस इज बाय द वे वेरी प्रेवलेंट. फिर ट्यूशंस पे भेज देते हैं या इस तरह की होते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड दैट उनका वैलिड कंसर्न है, बट फिर हम एक्सपेक्ट करें कि हम पेरेंट्स को भी अपस्किल करेंगे तो वो रियलिटी से थोड़ा सा डिवोर्स्ड है. अच्छा, मुझे बताएं सबीना, आई थिंक हम इसको क्लोज विद अ होप, मुझे ये बताएं कि इफ यू गेट अ चांस, आपके पास 24 hours and there's only one thing that you could immediately change about the education landscape in Pakistan, what would it be? That's a very tough question, but honestly, because abhi recently I am working very closely with this curriculum reform, so if one thing I could change, I would actually reduce it. So many years in this field, in this sector, education sector. Tell me, what gives you hope? अभी भी I know there are times जब एकदम से ना बंदे का ग्राफ नीचे आ जाता है, मतलब you are hoping this and realities are these. So वहाँ पर what gives you hope कि नहीं, कहीं ना कहीं ये बेहतर हो जाएगा? Working with honestly people like you, and very seriously, when I see people around me who are not giving up, who are actually going to the field, who are working day and night to change the situation, that gives me hope कि यार नहीं, इन्होंने नहीं गिव अप किया तो फिर I should not give up too. Thank you so much Sabina for this insightful conversation. I hope कि हम इस पे फ्यूचर में बार build करें and हम इस पे बात करना रोके नहीं, because sometimes we feel like this is just a dialogue, just a debate, but जो इम्पैक्ट है वो इसी से, आई होप कि किसी को सुन के कोई ऐसा आइडिया आ जाए जो ना अभी तक आपके एडटेक को आया हो ना मुझे आया हो, एंड वो चेंज लेकर आए. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. नहीं, थैंक यू सो मच. दिस वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. I had a great time.